Hello, good afternoon class. Myself Deepthi. In the previous topic, we have already learnt about the partnership, sole proprietor, joint Hindu family business, cooperative society, and the last one is a joint stock company. We have already learnt about all this topic, but now we have to go through this one, the difference between the public company and private company. Okay, this is our next topic after the fifth forms of business organization. We have already learned about the five forms of business organization: sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative society, and the last one, joint stock company. Now the next topic we will discuss today is the difference between the public company and the private company. Okay, so let us start. Difference between the public company and private company. Before starting the differences, we have to make sure that what is the public company and the private company. Private company क्या होती है, public company क्या होती है. Before telling the definition of the public company, we have to go through the private company firstly. Okay, private company is a joint stock company. Private company जो है वो joint stock company which is privately held, जिसको हम बहुत ही प्राइवेसी के साथ हैंडल करते हैं by its article of association. Now you will just make confused about this कि what is the article of association. Article of association means a form of document. ये एक डॉक्यूमेंट होता है दैट स्पेसिफाइज द रेगुलेशन फॉर अ कंपनीज ऑपरेशन, जिसमें सारी चीज़ें आपकी कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे उसके बारे में सारी चीज़ें इसमें रहती हैं. द डॉक्यूमेंट लेज आउट हाउ टास्क आर टू बी अकम्प्लिश, की जो भी टास्क प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं बिजनेस में उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उसे कैरी ऑन करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्शन, चाहे वो प्रोसेस हो आपका कि डायरेक्टर को अपॉइंट करो या हैंडलिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती हैं. तो प्राइवेट कंपनी जो भी चीज़ें करती हैं इसमें इनका मेन रोल होता है दैट दे जस्ट डू everything which is privately held. Okay, next thing we just come to the next one, public company. A public company whose ownership lies in the hands of the general public means we are the general public. All its ownership lies with the general public. आप बहुत तो सारी चीज़ें जो इनसे रिलेटेड रहती है वो जो भी चीज़ें इनकी रहती है वो जनरल पब्लिक से रिलेटेड रहती है. ठीक है, बट प्राइवेट कंपनी का सारी चीज़ें प्राइवेसी में रहती है, उसमें कुछ आप बोल नहीं सकते हो क्योंकि हुज ओनरशिप लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल. किसी एक इंडिविजुअल के पास उस चीज़ की पावर रहती है, हर एक इंडिविजुअल जो उसमें इस कंपनी में काम करता है. ओके, that was called a private company. But public company is always related to the general public. जो भी उनकी जो भी बिजनेस होती है वो जनरल पब्लिक के थ्रू ही होती है. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी जस्ट कम टू द बेसिक डिफरेंस ऑफ public company and private company. Okay, first basis for comparison, public company and private company. Okay, meaning, first we go to the meaning. A company which is owned and traded publicly ट्रेडेड पब्लिकली मीन्स आप बोल सकते हो, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको. जनरल पब्लिक मीन्स वी आर द जनरल पब्लिक, जो भी इनकी जो भी चीज़ें रहती हैं वो ओन और कंट्रोल जो भी उनकी पावर रहती है जनरल पब्लिक के पास ही रहती है, अदरवाइज इनकी पब्लिक कंपनी को आप चला नहीं सकते हो. ओके, एंड प्राइवेट कंपनी का क्या इशू है? प्राइवेट कंपनी क्या है, ये जो भी इनकी जो भी परचेजिंग एंड सेलिंग चीज़ें होती हैं, जो भी काम इनके बिजनेस में होता है वो बहुत ही प्राइवेटली बेसिस पे होता है. इज इट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग? Now come to the next one, minimum numbers. We have already discussed meaning. Minimum numbers कितने होते हैं? Can you tell me how much the minimum members should be in public company? Maybe 7. 7 minimum number आपके public company में होते हैं. Okay, and आप private company में देखोगे तो minimum आपके member 2 होते हैं. minimum आपके member होते हैं 2. वो इसलिए क्योंकि आप पब्लिक कंपनी में ले लोगे तो मिनिमम यहाँ पे 7 रहता है, जो भी इनका एटलीस्ट 7 मेंबर्स फॉर पब्लिक कंपनी और यू कैन रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी. जब तक आपके पास पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स नहीं होंगे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं कर सकते हो. ओके, बट कन्वर्जली वी कैन सी ऑन द अदर साइड 2 मेंबर्स शुड बी इन द प्राइवेट कंपनी. एक कंपनीज एक्ट आप लोगों ने पढ़ा था, कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. नॉट इज चेंज्ड. अब आज के समय में देखा जाए तो इंडियंस कंपनी 1956 को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया. नाउ वी हैव टेकन इन आवर एक्ट
2013, जिसको हम लोग 1956 को रिप्लेस करके उसके जगह ला दिए हैं एक्ट 2013, जिसके बेस पे सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं। इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जब हम लोग मैक्सिमम मेंबर की बात करेंगे। ओके, मैक्सिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड रहते हैं और प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं। इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि पब्लिक कंपनी में नो मैक्सिमम लिमिट, आप मिनिमम 7 रहते हैं, बट वहाँ पे जो भी मेंबर होते हैं आप बहुत रख सकते हो, उसी कोई इसे इनफाइनाइट कर लो कि आपको कोई प्राइवेट कंपनी के कंपेरिजन ये नहीं बोला है कि आपको पब्लिक में 100 ही रखना है या 300 रखना है या 400 मेंबर ही रखना है। अनलिमिटेड मतलब कि बहुत सारे आ सकते हैं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। बट on the other side we can see 200 should be in the private company। why? देखो, according to 1956 एक्ट के जब था ये 1956 एक्ट, तो उस समय ये था कि 50 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम। बट नाउ इन दिस डेज और इन दिस टाइम वी कैन से कि अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 we have to go with it, this 200 members should be limited in this private company। okay, next thing, minimum director, we have already talked about the members, now we come to the director, because without director, without manager, we cannot just carry on our business। okay, so there should be a 3 director in public company and 2 in private company। the thing is here कि मिनिमम डायरेक्टर्स जो आपके होते हैं मैक्सिमम 3 होने चाहिए देखा जाए तो आपके पब्लिक कंपनी में, एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए आपके प्राइवेट कंपनी में। डायरेक्टर तो मिनिमम आपको पता है कितने होने चाहिए, बट पब्लिक कंपनी में देखा जाए तो मैक्सिमम 15 होने चाहिए, या उसके बाद भी आप काउंट कर सकते हो। बट मिनिमम मेंबर्स देखा जाए तो मैक्सिमम आपके होते हैं प्राइवेट में 15 और मिनिमम 2। पब्लिक में देखा जाए तो 15 मैक्सिमम होते हैं, बट उसके बियॉन्ड भी आप ले सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सफिक्स एंड अफिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर पोर्शन में। दैट सफिक्स हम उसे बोलते हैं वेन एवर वी जस्ट ऐड समथिंग एट द लास्ट ऑफ द वर्ड्स। जब वर्ड्स के किसी एंड पोर्शन में हम लोग कोई चीज़ ऐड करते हैं वो कंप्लीट एक वर्ड बन जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सफिक्स। वी कैन टेक इट द एग्जांपल ऑफ अ लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लिमिटेड। वेन एवर यू विल सी that limited has written only limited, then you can say this is a public company। but whenever you will see that the word private limited is added as a suffix, means what कि जब private limited आप देखो ना PVT limited LTD लिखा रहता है, तो it means it was just added as a suffix after the name of the company। किसी भी कंपनी से एग्जाम्पल ले लो, ABC is the company, अब उसके बाद लिखा है कि PVT लिमिटेड, तो हम लोग को PVT लिमिटेड समझना पड़ेगा दैट दिस इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड जहाँ किसी कंपनी के बाहर लिखा रहेगा लिमिटेड ओनली, देन वी कैन टेक इट एज अ पब्लिक कंपनी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, स्टार्ट ऑफ बिजनेस, हाउ वी स्टार्ट एनी बिजनेस। तो पब्लिक कंपनी हाउ वी विल स्टार्ट, we will start after receiving the certificate of incorporation and certificate of commencement of business। तो हाउ डू वी स्टार्ट द बिज़नेस का मेन थिंग ये है कि वैन एवर वी स्टार्ट एनी बिज़नेस, पहली बात तो वहाँ पे हमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट पब्लिक में लेना ही पड़ता है। बट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ एक ये भी चीज़ होती है कि हमें एक कमेंसमेंट बिजनेस को स्टार्ट करने के कमेंसमेंट का भी सर्टिफिकेट लेना बहुत ही मैंडेटरी होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट में क्या होता है, वेन एवर वी जस्ट टेक द सर्टिफिकेट ऑफ रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हम लोग उस चीज़ को कैरी ऑन कर देते हैं। बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ऑब्लिगेटरी इन बोथ द सेक्शन, वी कैन सी पब्लिक एंड प्राइवेट। आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना ही बहुत ही कंपलसरी माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी मीटिंग को आप बोल सकते हो समथिंग लीगल बेस्ड, ठीक है। दिस स्टैट्यूटरी मीटिंग वी कैन फर्स्ट वी गो टू द डेफिनेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग, मतलब स्टैट्यूटरी मीन्स आप बोल सकते हो दैट वाज अ लीगल, सो टोटली बेस्ड ऑन लॉ। ओके, स्टैट्यूटरी मीटिंग आपका होता है ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जहाँ पे सारी चीज़ को रिपोर्ट किया जाता है, जो भी आपके मिनिमम पीरियड होते हैं 1 मंथ, विद इन इट शुड बी हेल्ड बिटवीन अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ एंड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद विद इन 1 मंथ एंड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ के बीच में ये स्टैट्यूटरी मीटिंग इनकी हेल्ड होती है।
एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग का मेन पर्पस होता है, इट नीड्स टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड मस्ट फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। आप इसमें बोल सकते हो कि स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड तो ज़रूर होती है, बट इसका मेन पर्पस क्या होता है? कैन नो, नथिंग, नो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन पर्पस ये होता है, कोई भी आप बिज़नेस खोलते हो उसकी एक ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे आपको सारी चीज़ की रिपोर्ट देनी पड़ती है। ओके, तो विदाउट रिपोर्ट नो वन कैन इमेजिन कि आपका जो भी चीज़ें चल रही हैं वो लीगल बेस्ड हो रहे हैं कि नहीं, अच्छी तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। तो जो भी डिस्कस्ड लेटेस्ट मैटर होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, हाउ मच शेयर इशू अलॉटेड, कितने शेयर हम अलॉट कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, कितने लोन क्रेडिट पे दे सकते हैं, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती है कि हम लोगों ने कितने लोन लिए, कितने शेयर्स इशू किए, कितने अलॉट किए, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन कितनी होनी चाहिए सर। तो ये सारी चीज़ें स्टैट्यूटरी मीटिंग में डिस्कस की जाती है। ओके, एंड वन मोर थिंग, इसी के कंपेरिजन आपका आप बोल सकते हो कि इसमें जैसे हम लोगों ने मिनिमम डायरेक्टर की बात की थी, तो ये स्टैट्यूटरी मीटिंग जहाँ पे ज़रूरी होता है, जहाँ पे कंपलसरी होता है, यू कैन सी दिस इज़ कंपलसरी इन पब्लिक कंपनी स्पेशली। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपके 2 डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको सर्टिफाइड किया जाता है। ओके, एंड ये स्टैट्यूटरी मीटिंग होने से पहले जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो पहले ही 21 डेज़ पहले, मीन्स 21 डेज ऑफ मीटिंग, डायरेक्टर सेंड नोटिस टू ऑल मेंबर। जो डायरेक्टर होते हैं वो नोटिस सारे मेंबर्स को सेंड कर देते हैं कि आपका ये जो मीटिंग है ये हेल्ड होने वाला है। ओके, पब्लिक कंपनी में इट इज़ कंपल्सरी, बट इन द प्राइवेट कंपनी इट इज़ ऑप्शनल, उसमें ज़रूरी नहीं होता है। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ऑब्लिगेटरी मीन्स, डोंट बी कन्फ्यूज, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी एंड कंपल्सरी, दीज आर 3 वर्ड्स। हम लोगों ने कंपल्सरी तो कॉमन वर्ड है, हम लोगों ने सुना है, मैंडेटरी भी हम लोगों ने सुना है, बट ऑब्लिगेटरी इज़ द थर्ड वर्ड वी कैन यूज़ इन द प्लेस ऑफ द कंपल्सरी वर्ड। ओके, तो इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कंपलसरी होता है, बट मेरे को नहीं लगता है कि प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर्ड हो सकती है ऐसी चीज़ों की। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि प्रॉस्पेक्टस, देखो, नीड वहीं होती है जब कोई कंपनी जनरल पब्लिक से कोई चीज़ इशू कराना चाह रहा है, अपने कंपनी के बारे में कुछ उनको नॉलेज प्रोवाइड करना चाह रहा है, कुछ एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरी है। प्राइवेट में जब सारी चीज़ें प्राइवेसी बेस्ड हैं तो हाउ वी कैन शेयर आवर पर्सनल थिंग टू द जनरल पब्लिक, बट पब्लिक कंपनी में तो ऐसी चीज़ें नहीं है। वी आर टोटली अटैच्ड विद द जनरल पब्लिक, वी आर टोटली कनेक्टेड विद द जनरल पब्लिक, तो वी हैव टू शो all the things through the prospectus. A company prospectus is a formal legal document, आप बोल सकते हो कि एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सके, जो भी फुल डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, अबाउट विच, अबाउट व्हाट, किस चीज़ के लिए, अबाउट एन इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग फॉर सेल टू पब्लिक, जो भी इन्वेस्टमेंट पब्लिक को करनी है, जो भी चीज़ें करनी है वो हमारे कंपनी में कर सकते हैं। एनी नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट, कोई भी नोटिस, कोई भी डॉक्यूमेंट में यही चीज़ में मेंशन होता है प्रॉस्पेक्टस में कि डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जो भी पब्लिक डिपॉजिट करना चाहती है हमारे इसमें, जो भी हमारे ऑफर्स को एक्सेप्ट करना चाहती है या हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहती है, हमारे डिबेंचर शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहती है, तो वो सारी चीज़ें उस प्रॉस्पेक्टस में लिखी रहती हैं। और ये पब्लिक कंपनी को उस प्रॉस्पेक्टस में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, बट वी कांट सी इट इन द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में उतनी नेसेसरी, इतनी ज़रूरत उसमें नहीं होती है। ओके, प्रॉस्पेक्टस का आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, व्हेन एवर यू टेक द एडमिशन इन एनी कॉलेज, ऑलवेज द कॉलेज प्रोवाइड यू सम प्रॉस्पेक्टस इन विच ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द कॉलेज हैज़ बीन मेंशन। सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं कॉलेज से रिलेटेड ही, कॉलेज का मंथली फ़ीस कितना लगेगा, कॉलेज में क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है, कितनी ग्रेजुएशन होनी, कितने ग्रेजुएशन के बाद क्या केस हो गए आगे, या जो भी आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। फाइनेंशियल पोजीशन भी उसमें मेंशन रहती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉस्पेक्टस इशू करने से आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, इन एनी केस नाउ कम टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। Public subscription allowed in public but not allowed in private company. Why it is not allowed in private company? Because in public subscription we can allow our shares and transferability of anything we can do with the general public, but in the private company we can't do. Okay, we can't just go with that private company. We are just allowed the general public to subscribe our shares and debentures, but we cannot allow in private company. Okay, come to the next one, quorum or at AGM. Now the thing is कि what is the meaning of quorum? QUORUM. What is the meaning of quorum? Quorum is the minimum number of people that a committee needs. जो कमेटी को
उतनी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है एक मीटिंग को हेल्ड करने के लिए, एक मीटिंग को कैरी ऑन करने के लिए किसी बिजनेस ऑफिशियल पर्पज़ से। वो रिक्वायरमेंट जितने मेंबर्स की होनी चाहिए एक एनुअल जनरल मीटिंग में उस मेंबर्स की बात होती है। जैसे कि पब्लिक कंपनी वी कैन टेक 5 मेंबर्स मस्ट प्रेजेंट इन अ पर्सन। 5 मेंबर्स का होना उस एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड 2 मेंबर्स मस्ट प्रेजेंट इन द प्राइवेट कंपनी। अब 5 एंड 2 में डोंट बी कंफ्यूज, 5 इट इज़ वेरी कंपलसरी इन दिस, 2 मेंबर्स मस्ट प्रेजेंट अ पर्सन। मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग एक होती है कंपनी में, तो उसमें जो मैक्सिमम आपके होने चाहिए रिक्वायरमेंट पीपल की उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द AGM। AGM का मतलब क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग, इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ दिस, बट वी हैव टू गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ दिस कि मेन मीनिंग इसकी होते क्या है, इसको हम एनुअल जनरल मीटिंग का नाम क्यों देते हैं। थ्रू द वर्ड ऑफ एनुअल यू कैन से कि एनुअल मीन्स जो आपका ओवरऑल साल एनुअली जो आपके रिपोर्ट होते हैं। एनुअल एग्जाम का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपने साल भर क्या पढ़ाई की, तो उसका एनुअल रिपोर्ट आपको मिलता है एट लास्ट ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। वैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग किसी भी ईयरली बेस्ड होता है, एक साल कंप्लीट होने के बाद ये एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होती है। Annual general meeting is a mandatory, means it is very compulsory yearly based of a company interested shareholders। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। एट एन AGM द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो एनुअल रिपोर्ट अपना रिप्रेजेंट करते हैं उस मीटिंग में। जो इन्फॉर्मेशन उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं कंटेन, इट वॉज जस्ट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर शेयर होल्डर्स अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी। जो भी शेयर होल्डर्स की परफॉर्मेंस है कंपनी में, उनकी जो भी स्ट्रेटजी चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। ओके, डायरेक्टर उस मीटिंग में सारी बात को अपने रखता है, जो भी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट रिलेटेड रहता है, शेयर होल्डर्स को लेकर रहता है। नेक्स्ट वन इज द AGM must be held within a 6 months. The annual general meeting always held within a 6 months. Means within a 6 months they just held this annual general meeting. Okay, from the closing date of financial year. एंड बट इसकी जो नोटिस रहती है 21 डेज पहले ही नोटिस जो है वो जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने कंपनी में सारे शेयर होल्डर्स को पहुंचा देते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो हेल्ड होने वाली है। कम टू द नेक्स्ट वन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स व्हाट? whenever we just talking about the next one is transfer of shares, means when we just connect with the general public. Transfer of shares, there is no any cost is related to transferring any shares to the public. It was free. इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करे या कुछ रेस्ट्रिक्शन बेस्ड है। बट वेन एवर वी गो टू द नेक्स्ट वन, रेस्ट्रिक्टेड, इट वॉज जस्ट रेस्ट्रिक्टेड इन द प्राइवेट कंपनी बिकॉज 200 मेंबर्स अगर आपके रेस्ट्रिक्टेड हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में, तो आप सबको शेयर इशू नहीं कर सकते हो। ओके, it should be just free in public company, but it was restricted in the private company. Is it clear? Now these we have discussed about the difference between the private and public company. In the next topic we will discuss about the choice of form of business organization, and this choice of form of business organization is the last topic of this chapter. After this we just complete the second chapter. Okay, so just like and subscribe my video. Okay, thank you class for today.